Welcome back, children. I am Juleka Bamra, and today I am going to continue with the remaining part of your first chapter of Social Studies, Rise of British Rule in India. In our last lecture, we learned that how the Britishers found a new sea route to India for carrying out the trade, and how the various European nations started looking for a new sea route. Alright. Now, today we are going to start from the arrival of Europeans to India and how they gradually took over the various territories of India. Alright. So, as we learned in the earlier session, we already know that the Portuguese were the first people to arrive in India for trade. Right. Because the Portuguese sailor Vasco da Gama, he discovered the new sea route to India. So, since 1498, they started trading. Now, by 1600 AD, there were a lot of places where they had already gained control. Okay, so now if you look here, you will have to mark a few places. Right? The Portuguese took control of several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc. You can have a look at this map. The ones which are marked with the star are Portuguese colony, the one with the triangles are French colony, and the one with the blue circle are the British colony. So, see, Diu, Daman, Goa, Calicut, Kochi, these were all the पोर्चुगीज़ कॉलोनी. ओके, कॉलोनी का मतलब क्या होता है? ऐसी जगहें जहाँ पर ज़्यादा उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग रहते हो, या जहाँ पे उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग या उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लोग आप ज़्यादा पाए जाएंगे. ठीक है, और वो उन जगहों पे ज़्यादा ट्रेड करते थे. फाइन. So, we can see that in a span of just 100 years, they had gained their control over a lot of places, and all of them lie on the coastal regions, if you see, right? Because it was all, the trade was possible through the sea route. The land route was already closed. Fine. So they started conquering our nation from the south, you can say. Now, after that, the English traders established the East India Company to carry out trade in India. Okay, that was in 1600 AD. when the Queen Elizabeth of England gave the permission for carrying out this trade. तो देखो, आपको ये बात दिमाग में अच्छे से उतार लेना है कि before the Britishers came to India, this company was established in England. ठीक है, तो पहले इस कंपनी की शुरुआत की गई, शुरुआत हो जाने के बाद फिर ट्रेड शुरू किया गया. सो मैनी ए टाइम्स आई हैव सीन दैट चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज कि पहले ब्रिटिशर्स आए और फिर ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. पहले ब्रिटिशर्स ने ये कंपनी को इस्टेब्लिश किया, पहले एक कंपनी की शुरुआत होती है और फिर उस कंपनी के थ्रू ट्रेड कैरी किया जाता है. राइट. सो एट दैट टाइम द क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड, हु वाज द क्वीन, शी गेव द परमिशन टू द ब्रिटिश ट्रेडर्स टू कैरी आउट ट्रेड इन इंडिया. राइट. फिर उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस, the first ship from British arrived in Surat. Okay, so you can mark all these points. Let us mark all the important points here. First thing that we are going to mark here are Portuguese took control over several territories like Diu, Daman, Goa. Okay, then Kochi, Malacca. Fine. Then the second thing that we are going to mark is इंस्पायर्ड बाय द पोर्चुगीज़. दूसरे यूरोपियन नेशंस भी थे जो इंडिया आए थे, तो कौन थे? द डचेस थे. राइट. देन द डैनिश मीन्स द पीपल फ्रॉम हॉलैंड. ओके, एंड सॉरी, जस्ट अ मोमेंट. एंड फ्रॉम डेनमार्क द डैनिश, दैट इज़ फ्रॉम डेनमार्क. ओके, फाइन. Then the English traders established the East India Company to carry out trade with India. In 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out trade with the eastern countries, the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. Okay, तो ये आपको मार्क करना है. Fine. The first ship under the leadership of Captain Williams Hawkins arrived in Surat.
फाइन। अब जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तब पोर्चुगीज़ ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, सो दे वर डोमिनेंट मतलब जिसका ज़्यादा दबदबा होता है, तो उस वक्त में पोर्चुगीज़ का दबदबा ज़्यादा था। सो दे वर नॉट अलाउड टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेड सेंटर्स हियर, ठीक है। अब वहाँ पे इंग्लैंड में तो ट्रेड सेंटर था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन यहाँ पर भी तो एक लोकल ट्रेड सेंटर चाहिए जिससे कि ट्रेड कैरी आउट किया जा सके। सो दे वर नॉट अलाउड टू एस्टैब्लिश देयर ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। बट देन फाइनली जो मुगल एम्पर जहांगीर था उसने इनको परमिशन दिया, एंड देन दे एस्टैब्लिश देयर वेरियस ट्रेड सेंटर्स। सो वेयर वर दीज ट्रेड सेंटर्स एस्टैब्लिश? दीज वर एस्टैब्लिश्ड इन कोठी इन सूरत 1613 AD इनिशियली, ओके। उसके बाद सूरत, भरूच, अहमदाबाद, these are all places of Gujarat as we already know that now. But due to the strong presence of Maratha in this region, the company sensed danger to its existence and hence moved towards the south. तो अब इनको पता चल गया कि यहाँ पे अपने ट्रेड सेंटर्स खोलना आसान नहीं होगा. So what they started moving towards the south region and they started getting their trade centers established in the southern region. So later on, the company sensed danger to its existence and hence moved towards the south and east direction, where they set up their centers in Machilipatnam, which is in Andhra Pradesh, St. George, which is Chennai, and Fort Williams, which is Kolkata. Okay, Mumbai became their headquarters in 1687. Again, an important date that you need to mark. तो Mumbai became headquarters in 1687 वाला point आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मार्क कर लेना है. The French East India Company arrived in India for trade in 1668. अब जैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी ट्रेडिंग कंपनी खोली थी, वैसे ही फ्रेंच ने भी अपनी ट्रेडिंग कंपनी खोली थी, and that was in 1668 when the French East India Company also arrived in India for the trading purpose, right? अब क्या हुआ, इन्होंने कहाँ कहाँ अपने ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए? लेट अस मार्क ऑल दैट पॉइंट. माहे, कराईकल, पुडुचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम, तो ये सारे फ्रेंच कॉलोनीज बन गई लेटर ऑन. ऑलराइट, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस. आई होप ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी मार्क्ड ऑल दीज पॉइंट्स. Fine. The French East India Company arrived in India for trade in 1668. You have to mark this date, and eventually set up the centers at these various places. In the 18th century, there was war. ठीक है. अब between 1746 से लेके 1763 there were 3 Mysore wars between the French East India Company and the British East India Company. तो फ्रेंच के और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, किस लिए कि कौन ज़्यादा ट्रेडिंग सेंटर्स यहाँ पे खोल पाता है. तो ये जो वॉर्स होती थी ना, ये जो तीनों वॉर हुई, इनको कैनेटिक वॉर्स भी बोला जाता है. Alright, so here it is already mentioned that British and the English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering more territories. So इसका क्या मतलब है? See, Britishers initially came to India for trade and were lured by the richness of our country. ठीक है, तो पहले तो वो ट्रेड के लिए आए थे, but then gradually they knew that इंडिया जो है सोने की चिड़िया है, so they could gain a lot of wealth here. एंड इट वॉज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि ब्रिटिशर्स कहीं पे अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहे थे. दुनिया में बहुत सारे दूसरे ऐसे नेशंस ऑलरेडी थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर ली थी, और वहाँ से भी काफ़ी सारी वेल्थ जो है वहाँ से वो ट्रेड करके अपनी कंट्री में ले जाते थे. राइट, सो यूरोपियन कॉलोनीज वेर एस्टैब्लिश्ड इन मेनी अदर नेशंस, बट नाउ दे वांटेड टू ले देयर हैंड ओवर द इंडियन ट्रेजर. ओके, सो ये जो फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो झगड़ा था वो भी मेनली इसी की वजह से था. सो द ब्रिटिशर्स वेर नॉट ओनली द यूरोपियन नेशंस हु हैड द कॉलोनीज इन अदर कंट्रीज, देयर वर वेरियस अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो. वो पहले से यही किया करते थे कि दूसरे कंट्री में जाके अपनी कॉलोनीज बनाते थे और वहाँ पे उनका वो पूरा क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज़ बना के फिर सारी वेल्थ जो थी वो अपने नेशन में ले जाते थे. फाइन. Thus, at the end of the battle for power, the Portuguese were left with Diu, Daman, Goa, while French had their trade centers at Chandranagar, Mahe, Karaikal and Puducherry. तो आपको ये भी मार्क कर लेना है कि पोर्चुगीज़ के पास कौन सी टेरिटरी बची और फ्रेंच के पास कौन सी टेरिटरी बची. Meanwhile, the Dutch had to live forever. That means कि डच जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाए इन सारे झगड़ों के बीच में. तो
मेनली सिर्फ तीन ही नेशंस बचे थे, ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे एंड दी पोर्चुगीज़। अब आता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी सिग्निफिकेंट बैटल। ओके, इसका सिग्निफिकेंस इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट बैटल दैट वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस, द किंग्स ऑफ इंडिया ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। ओके, मतलब हमारे ही घर में आके कोई हमसे लड़ाई झगड़ा करे तो कैसा फीलिंग होगा। सो दिस वाज द सेम थिंग दैट हैपेंड एट दैट टाइम। ऑलराइट, तो अब पढ़ते हैं हम बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था। ओके, सो प्लासी वाज अर्लियर नोन एज पलाशी। तो ये जगह जो है वो बंगाल को बिलोंग करती थी उस टाइम में। ओके, एंड नाउ इट इज़ नियर औरंगाबाद। सो सी यहाँ पे नोट में भी दिया है, बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर्स फ्रॉम मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। राइट, सो देखिए, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में भले ही हम एक इवेंट के बारे में पढ़ रहे हों, लेकिन दिमाग में ये बात रखना बहुत ज़रूरी है कि साइमल्टेनियसली कहीं और कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी की, तो उसी टाइम में कहीं और पे दूसरे किंग्स के बीच में और दूसरे ट्रेडर्स के बीच में भी कुछ हो रहा था। बट एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट स्टडीइंग दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। ओके, तो पैरेलली कहीं और भी दूसरी बहुत सारी इवेंट्स रिलेटेड हो सकती हैं। नाउ सिराजुद्दौला वाज रूलिंग ओवर बंगाल। ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर ही हैड सम ओपोनेंट्स इन हिज स्टेट। तो उसकी ही खुद की ही किंगडम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसके विरोधी थे। Alright, so during this period, the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reasons. अब इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई बैटल ऑफ प्लासी की, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो देखो, ऐसा था कि औरंगज़ेब ने इनको ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स को। तो इनके पास लाइसेंस था कि इनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं थी। अब किसी भी किंगडम को जो इनकम होती है वो टैक्स से होती है, राइट। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये जो ट्रेड फ्री लाइसेंस था वो खुद भी यूज़ करते थे, और लोकली जो इंडियन ट्रेडर्स थे कुछ, उनको भी वो बेचते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो किंगडम था उसकी जो इनकम थी वो कम हो गई, राइट। और बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ भी थी जो जिनकी परमिशन ब्रिटिशर्स को लेनी चाहिए थी लोकल किंग से, लेकिन वो नहीं लेते थे। सो सिराजुद्दौला डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड, और जो उनके जो एम्प्लॉइज़ थे, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने आके उसको इन्फॉर्म किया कि ब्रिटिशर्स की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं विच आर अगेंस्ट द लॉज ऑफ द किंगडम। तो उसने क्या किया, उसने जो ब्रिटिशर्स की जो शिप्स थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और ब्रिटिशर्स का जो फोर्ट उन्होंने बिल्ड किया था, जो कि जिसका परमिशन उन्होंने नहीं लिया था, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड अ सॉर्ट ऑफ वॉर, अ सॉर्ट ऑफ स्मॉल बैटल हैपेंड बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द नवाब, राइट। अब ये न्यूज़ जो है वो कहाँ पहुँचता है, मद्रास। तो उस टाइम में मद्रास में भी ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी का सेंटर था, और वहाँ पे था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अपनी आर्मी की एक छोटी सी फ्लीट वहाँ पे भेजी सपोर्ट के लिए, राइट। लेकिन उसकी आर्मी टिक नहीं पाती है। सो नाउ ब्रिटिशर्स न्यू दैट नवाब के सामने जीतना बहुत ही मुश्किल था, अनलेस कि उन्हीं में से किसी को वो धोखा देने के लिए रेडी कर ले। नाउ मीर जाफ़र हु वॉज हिज आर्मी चीफ, ठीक है, इसकी आर्मी का जो चीफ था, जो सूबेदार था उसका, उसको इन्होंने क्या किया, अपनी तरफ कर लिया, ऑन द कंडीशन कि अगर वो सिराजुद्दौला के सामने लड़ने में इनका साथ देगा तो उसे फ्यूचर किंग बनाया जाएगा उसको, राइट। तो उसने क्या किया, ट्रेजरी की उनके साथ, अपने राजा के साथ। तो वो जो बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ, तो एक्चुअली वो बैटल ऑफ प्लासी कभी हुआ ही नहीं था, उस तरीके से हुआ। मीर जाफ़र कभी लड़ा ही नहीं राजा के ब्रिटिश आर्मी के सामने, और वो आधे ही दिन के अंदर वो वॉर ख़त्म हो गई। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस पार्ट फॉर यू। I have already explained this part. Now, Sirajuddaulah was ruling over Bengal. Due to his impulsive nature, he had some opponents in his state. During this period, the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reason. Pretext मतलब उसी बहाने से, without taking the permission of the Nawab. But Nawab destroyed the fortress. When this news reached Madras,
A small army of the company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. ठीक है, तो उससे सामने लड़ने के लिए रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी को लेके आया. In spite of the army of the East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat Nawab's army. उनको पता था कि इसको डिफीट हम नहीं कर पाएंगे. So Robert Clive resorted a treachery मतलब धोखाधड़ी करने का सोचा. A conspiracy, planning, बुरी मंशा से जो प्लानिंग होती है उसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं. A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab. Now, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Jafar and Seth Amichan was coaxed to join. On the pretext that the Nawab is unnecessarily harassing the people, a war was declared at the ground near a village named Plassey. According to the plan, Mir Jafar lost the battle. Siraj-ud-Dawla was defeated. Due to Robert Clive's treachery, the Battle of Plassey ended in just half a day. ठीक है, तो वो पहले से ही एक pre-planned battle था. Okay. The company as a result got a free hold over 24 paraganas. Paraganas मतलब वहाँ के जो प्रोविंसेस होते हैं, जो एरिया होते हैं. तो जब कंपनी जीत गई उसके सामने, तो उसके अधिकार उसने उसके ऊपर ले लिए, उसका कंट्रोल ले लिया उन परगनास पे. मिर जाफ़र वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. उसको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर वो हेल्प करेगा तो उसको वो राजा बनाएंगे वहाँ का. तो ऑब्वियसली वो राजा तो बन चुका था, बट देन ही वॉज मियरली अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स. Thus, the foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757. Right? So, this was the first battle which was fought between the Britishers and the Indians. Now, in the next lecture, we are going to start with Battle of Buxar. Right? So, Battle of Plassey and Battle of Buxar are both related with each other, and we will see how they are related. Okay? I hope today you have enjoyed the lesson. Please note down all the important points and write the chronological order of the occurrence of events. See you next time, children. Have a nice day.